ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں شمارے کے اہم موضوعات پر۔ سرحدی علاقہ گریز میں 10 روزہ فلم سازی ورکشاپ منعقد۔ نوجوان کشمیری فیشن ڈیزائنرز نے کی تاریخ رقم۔ سکل سینٹر پونچھ میں خواتین کو مفت تربیت فراہم۔ پی ایم وشوکرما اسکیم کشمیری ہنرمندوں کے لیے امید کی نئی کرن۔ تھانہ منڈی راجوری میں کیا فوج نے میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ کشمیری نوجوانوں کو روزگار سے ہم آہنگ کرنے کے مقصد کے تحت سرحدی علاقہ گریز میں 10 روزہ فلم سازی تربیتی ورکشاپ منعقد ہوا۔ اس تربیتی ورکشاپ میں گریز سمیت وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے فلم سازی سے متعلق تربیت حاصل کی تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے، اپنے لیے روزگار کا ایک نیا ذریعہ تلاش کر سکے۔ اس تربیتی ورکشاپ کو فوج نے منعقد کیا جبکہ بالی ووڈ کے مشہور ہدایت کار اونیر کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وادی کشمیر کے دور دراز علاقوں خاص طور پر سرحدی علاقہ جات میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے وسائل پیدا کرنے کے مقصد کے تحت وادی گریز میں 10 روزہ فلم سازی سے متعلق تربیتی ورکشاپ منعقد ہوئی۔ اس ورکشاپ میں مقامی نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ تربیتی ورکشاپ فوج کے تعاون سے منعقد کی گئی۔ نوجوانوں نے کہا کہ مقامی نوجوان فلم سازی کا ہنر سیکھ کر اپنے لیے روزگار کا نیا ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں جبکہ دوسرے بھی مستفید ہوں گے۔ یہ چیز میرے بچپن سے خیال تھا کہ میں ایک کہانی لکھوں، لیکن میں کہانی آئیڈیاز بہت سارے آ رہے تھے، لیکن مجھے اس چیز کو انجام دینا نہیں آ رہا تھا کہ میں ایک اسکرپٹ کیسے لکھوں، میں ایک کہانی کو انجام کیسے دوں۔ لیکن میں شکر ادا کر رہا ہوں ڈائریکٹر اونیر سر کا کہ 2 دن سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ کیمرہ کے بارے میں سیکھنے کو ملا، ایک کہانی کو ہم ایکشن کس طرح ہوتا ہے، کہانی کا ایک سین ہائڈنگ کیسے ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ٹائٹل وغیرہ وہ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں اسی چیز سے۔ تو میں شکر ادا کر رہا ہوں آسام رائفلز اور اونیر سر کا۔ اس ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لانے کے لیے بالی ووڈ کے معروف ہدایت کار اونیر کی خاص خدمات حاصل کی گئیں۔ 10 روز تک جاری رہنے والی تربیتی ورکشاپ میں وادی گریز سمیت جموں کشمیر کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے 15 طلباء نے شرکت کی جن میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ایک طالبہ نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں لڑکیوں کو عموماً گھر کے کاموں تک ہی محدود رکھا جاتا ہے، تاہم اس طرح کے ورکشاپ میں شرکت سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ یہ ہونی چاہیے ایک سی ورکشاپ باقی ڈسٹرکوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ریسنٹلی اجے دیوگن آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے بھی کشمیر کے فلم انڈسٹری کو تھینکس کیا تھا۔ انیر صاحب بھی اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کیا ہے ورکشاپ گریز یہاں پہ ہندوارہ میں بھی، تو اب یہ یہاں پہ کر رہے فری آف کاسٹ کر رہے، آرمی کی ہیلپ ہو رہی ہے۔ تو وی آر تھینکفل ٹو آور انیر سر، ہماری ٹیم اس کو بہت شکریہ گزار مند ہے اس کی، انہوں نے بہت ہی اچھا موقع دیا ہمیں آگے آنے کے لیے۔ دہائیوں سے وادی گریز کے سرسبز و شاداب جنگل اور پہاڑ بالی ووڈ کے ہدایت کاروں کو شوٹنگ کے لیے راغب کر رہے ہیں اور انہی ہدایت کاروں کی زیر نگرانی ورکشاپ میں مقامی نوجوانوں کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا۔ ایوارڈ یافتہ ڈائریکٹر اونیر کا کہنا ہے کہ گریز وادی اپنی جغرافیائی، ثقافتی اور روایات کے لحاظ سے ایک منفرد جگہ ہے جو اسے بالی ووڈ کی شوٹنگ کے لیے موزون بناتی ہے۔ جس چیز کا سچ میں پیشن ہے تو وہ ایٹ لیسٹ ایک بریف ایکسپوجر پائے، پھر یہاں سے انٹرنشپ بھی ملنا ہے، اسکالرشپ ملنے کا، یہ سب پاسبلٹیز ہے۔ تو مجھے لگا کہ آئی وانٹ ٹو گیو دیٹ پاسبلٹی ٹو دا اسٹوڈنٹس ہیئر، کیونکہ مجھے خراب لگا کہ اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنا ڈریمس ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ویٹ کرنا کہ کب گورنمنٹ کرے گا، کب اتھارٹیز کرے گا،
खुद जो भी कर सकता है इंसान करना चाहिए. वादी के दीगर हिस्सों की तरह गुरेज वैली में फिल्मों की शूटिंग की बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है. गुरेज जैसी खूबसूरत जगह पर वर्कशॉप का मकसद सरहदी तलबा को फिल्म साजी की तालीम देना है, उन्हें हुनर फराहम करना है ताकि वो अपनी जिंदगी में खुद मुख्तार हों और वादी गुरेज की सकाफत और रवायत को फरोग दे सकें. कश्मीरी नौजवान ज़िंदगी के हर एक शोबे में नई नई तारीखें रकम करके दुनिया को अपनी जहानत और काबिलियत की बुनियाद पर हैरान कर रहे हैं. हाल ही में 3 कश्मीरी फैशन डिज़ाइनर्स ने एक नई तारीख रकम की. SSMD स्कूल ऑफ डिज़ाइन में ज़ेर तालीम अरवा शाह, मीर मनाल और अरमान आसिफ नामी फैशन डिज़ाइनर्स ने पहली बार कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में हिस्सा लिया. इन तीनों फैशन डिज़ाइनर्स की खासियत क्या है और किस तरह उन्होंने इन चैलेंजेस का मुकाबला किया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में. 3 कश्मीरी फैशन डिजाइनर्स ने एक नई तारीख रकम की. SSMD स्कूल ऑफ डिज़ाइन में ज़ेर तालीम अरवा शाह, मीर मनाल और अरमान आसिफ कश्मीर के ऐसे 3 फैशन डिज़ाइनर्स बन चुके हैं जिन्हें पहली मर्तबा दिल्ली में मुनक़िदा कौमी सतह के फैशन वीक में शिरकत करने का मौका मिला है. तीनों ने खूबसूरत और माहौल दोस्त काबिले ज़ेबतन लिबास बनाने में अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया. जो हमने ये फ़ैशन शो किया, ये टाइम्स फैशन वीक गुड़गांव में हुआ था. ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था. मतलब पहले ही हमें स्टेज मिला कि हमने ऐसा कलेक्शन नहीं, एक परफॉर्मेंस आर्ट था जिसको हम बोलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे इस कलेक्शन को लेके. हमें लास्ट मोमेंट तक ये लग रहा था हम बहुत ट्रोल फेस करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारी कलेक्शन स्टेज पे जाएगी शायद लोग बोलेंगे ये सब क्या है. लेकिन हमने अपना माइंड प्रिपेयर ऐसे किया और हमने लोगों का माइंड ऐसे प्रिपेयर किया. हमने एक कलेक्शन नोट बनाया जिसमें हमने लिखा कि जो कलेक्शन हम सामने लाने जा रहे हैं आप लोगों के, वो एक कलेक्शन नहीं, एक परफॉर्मेंस आर्ट है जिसके थ्रू हम ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनको, या ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनको कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगे कपड़ा पहनो. आप लोग सस्ते से सस्ता कपड़ा पहन सकते हो, लेकिन उसको डिज़ाइन उस तरीके से कर सकते हो कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखे. तो हमारा मशवरा ये था लोगों को. फिर जो ही हमने अपनी कलेक्शन सामने लाई तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन दी, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी. अरवा शाह, मीर मनाल और अरमान आसिफ ने पहली बार कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में हिस्सा लिया. ये एक तारीखी लम्हा था क्योंकि ये पहला मौका था जब कश्मीर से किसी ने इस बावकार फैशन इवेंट में शिरकत की थी. डिज़ाइनर्स ने एक मुनफरिद मजमूए का तस्वुर पेश किया जिसमें महीनों की पेचीदा मंसूबाबंदी और मेहनत और लगन कार फरमा थी. चैलेंजेस और शकूक व शुबहात से भरपूर लम्हात का सामना करने के बावजूद टाइम्स के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए उनके मुसम्मम अज़म ने इन तीनों नौजवान कश्मीरी फैशन डिज़ाइनर्स को आगे बढ़ाया. दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अप्रिशिएशन मिल रहा. उन्होंने बोला कि पहली बार हम देखने की कश्मीर में काम कर रहे हैं और मतलब कि एक डिफरेंट डायरेक्शन देना. यूजुअली मतलब कि वहाँ क्या रिप्रेजेंट हुआ था, ब्राइडल वेयर हुआ था, बहुत खूबसूरत ब्राइडल वेयर था, बट हमारा जो कलेक्शन था थोड़ा हटके था, थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मतलब कि इट वाज नॉट फोकस्ड, वो ब्राइडल वेयर पे फोकस नहीं था. उसका जो हमारा जो कलेक्शन भी नहीं है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, परफॉर्मेंस आर्ट है, बिकॉज वो हम डे टू डे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम पहन भी नहीं सकते हर दिन. हमारा बस यही मतलब था कि हम ये दिखा सकते हैं कि चाहे आपका कितना भी सस्ता या कितना कीमती कपड़ा हो, आप उनको एलिवेट करके एक फैशन के माध्यम में दिखा सकते हैं. इन उभरते हुए फैशन डिजाइनर्स ने एक मुनफरिद पहल के तहत ऐसी कलेक्शन पेश की जिसे हाज़रीन ने काफी सराहा. इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना डिजाइन तरतीब देने में रद्दी कागज से लेकर सीमेंट की थैलों का इस्तेमाल किया, जिससे इन नौजवान कश्मीरी डिजाइनर्स ने माहौल दोस्त फैशन के लिए एक नया मयार मुरतब किया. वहीं उन्होंने इस ख्याल से ये पैगाम देने की भी कोशिश की है कि कम लागत में भी बेहतरीन डिजाइन के कपड़े तैयार किए जा सकते हैं. मैंने बहुत सारे ताने सुने हैं लोगों के
इवन मेरे जो नेबर्स है, मेरे जो वो लोग बोलते थे, उन लोग ने मेरी माँ को बोला कि क्यों करने इतने लाख तुम्हें वेस्ट, टेलर के पास भेज दो, 10 महीने में सीख जाएगी टेलरिंग। तो ये सब मुझे सुनना पड़ा। और आज वही लोग मेरे घर आ रहे हैं, वो लोग मुझे बोल रहे हैं हम तुम्हें बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। एज अ डिस्ट्रिक्ट, एज अ पूरा कश्मीर को तुमने रिप्रेजेंट किया, तुम्हारे स्कूल को, कॉलेज को तुमने रिप्रेजेंट किया, हम बहुत खुश हैं। तो वो सब जो था, अब उनको समझ आ रहा है कि फैशन डिज़ाइनिंग इज़ समथिंग एल्स। ये टेलरिंग नहीं है, ये रैम्प वॉक्स नहीं है, रिवीलिंग कपड़े पहनना नहीं है, इट इज़ समथिंग एल्स। डिजाइनर्स ने कहा कि ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसमें हमारी शिरकत करना ही सबसे बड़ी बात थी। अगरचे हम ज्यादा पुरउम्मीद नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था कि बड़े स्टेज पर अपने फन का मुजाहरा करने के बाद हमें हदफे तनकीद बनाया जाएगा और हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। ताहम हमारी हौसला अफजाई हुई और हमारे डिजाइन्स को काफी पसंद भी किया गया। हमारी आबादी की तकरीबन 19% ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में मर्दों की शाना बशाना काम कर रही हैं। उनमें ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपनी हुनरमंदी से दूसरों के घरों की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी रंगीन नहीं होती, जिसकी बुनियादी वजह उनका गैर तालीम याफ्ता होना, गुर्बत और बेबसी है। ताहम मरकज़ी हुकूमत ने ऐसी ख़वातीन को हुनर के ज़रिए माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए कई स्कीमें मुरतब की हैं। उन्हीं स्कीमों में से एक स्कीम के तहत पुंछ में देही ख़वातीन को हुनर की तरबियत दी जा रही है। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया गया है, जहां मकामी ख़वातीन को हुनर की तरबियत दी जाती है ताकि वो बाइख्तियार बन सकें। इस स्किल सेंटर में आजकल दर्जनों ख़वातीन कटिंग एंड टेलरिंग की तरबियत हासिल कर रही हैं। यहाँ ज़ेर तरबियत लड़कियों का कहना है कि वो तालीम के साथ साथ हुनर की तरबियत भी हासिल कर रही हैं। उनका कहना था कि हमें तजुर्बा हासिल हो रहा है जो हमें खुद मुख्तार होने में फ़ायदा देगा। हम यहाँ पे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में आए हैं, ये केवीके पुंछ में। यहाँ पे हमें सिलाई, कपड़े, ड्रेस कटिंग और सिलाई की हमें यहाँ पे सिखाया जाता है ताकि हम सीख सकें, सीख के आगे अपना हम काम शुरू कर सकें, हम किसी पर डिपेंड ना हो और ख़ुद इंडिपेंडेंट हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और यहाँ पे हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ अजय गुप्ता सर का, संग्राम सर का, जिनने ये ट्रेनिंग यहाँ पे लाई और हम जैसी फीमेल्स को यहाँ पे सीखने का मौका दिया। कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ के इस तरबियती मरकज में पुंछ के दीही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन को हुनर की तरबियत दी जा रही है ताकि ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाया जा सके और इसके नतीजे में वो मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालें। देही तरक्की की वजारत के तहत रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए हुनरमंदी की तरबियत दी जा रही है। हम यहाँ पे केंद्र केवीके में ट्रेनिंग करवा रहे हैं, 35 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे आरसीटी की तरफ से ये बैच आया है कटिंग एंड टेलरिंग का। हम इसमें कटिंग के बारे में और टेलरिंग कैसे सिलाई करनी है, मशीन के बारे में हर चीज़ हम बता रहे हैं। आजकल बेरोज़गारी बहुत है, औरतों को ये ज़रूरी है कोई ना कोई काम करना, इसलिए हम उन्हें सिखा रहे हैं। ये सीखेंगी, खुद का बुटीक खोलेंगी और औरों को भी जो है रोज़गार देंगी। पुंछ की ख़वातीन ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और तरबियती इदारे का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने उन्हें एक नया हुनर सीखने और माली तौर पर खुद मुख्तार होने का मौका फराहम किया। इस इंस्टीट्यूट के मुंतज़मीन ने बताया कि ये कोर्स 1 माह पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि बेदारी मुहिम के दौरान ख़वातीन को कोर्स के लिए मुंतखब किया जाता है। 1 महीने का यहाँ पे यानी कि हम कटिंग टेलरिंग का कोर्स हमारा यहाँ पे चलता है। आफ्टर 1 मंथ इनको एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, फिर इनको कुछ यानी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। आफ्टर दैट अगर उसके बाद अगर ये अपना काम यानी स्टार्ट करना चाहें तो J&K बैंक की तरफ से इनको यानी कि अलग अलग स्कीम्स के थ्रू यानी कि लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें यह है कि मेन जो गांव में हमारी एजुकेटेड जो भी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं जो भी गांव में हैं, तो यही ऑब्जेक्टिव है कि उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और अपना रोज़गार कमा सकें।
हुनरमंद घरेलू खवातीन हिंदुस्तान की मौशी ताकत है। मरकजी हुकूमत ने खवातीन की बाइख्तियारी के लिए कई स्कीमें मुरतब की हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में भी अमलाया जा रहा है, ताकि यहाँ की खवातीन भी समाजी और मौशी तरक्की से हम आहंग हो सकें। श्रीनगर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के तहत मकामी हुनरमंदों के लिए एक तरबियती सेंटर कायम किया गया है। इस सेंटर में जहां नए कारीगरों को तजुर्बाकार कारीगर हुनर से हम आहंग कर रहे हैं, वहीं मरकजी स्कीम के फ़वाइद कारीगरों और दस्तकारों तक पहुंचाने के लिए बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कारीगर इस स्कीम के दायरे में आ सके। इस स्कीम की अमल आवरी पर कारीगर क्या कहते हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे खुशहाल बन रही है, देखिए इस बारे में हमारी यह खास रिपोर्ट। हाल ही में श्रीनगर में पीएम विश्वकर्मा स्कीम पर एक रोज़ा जामा बेदारी प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। इस प्रोग्राम में वादी कश्मीर के हुनरमंदों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद मकामी हुनरमंदों को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाना था। ये स्कीम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन श्रीनगर में लागू हो चुकी है, जहां एक तरबियती सेंटर भी कायम किया गया है, जहां हुनरमंदों को हुनर की तरबियत दी जाती है और इस स्कीम के फवाइद कारीगरों तक बराह रास्त पहुंचाए जाते हैं। यहाँ हमको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। ट्रेनिंग मिली हमको 5 दिन की, इसके बाद 15 दिन की ट्रेनिंग है। हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने मिले। हम अब हाई लेवल पे जाएंगे। पहले हमको इतने नॉलेज नहीं थी जितने हमको इस विश्वकर्मा स्कीम से मिली हैं। हम इस सरकार के बहुत शुक्रिया करते हैं कि हमको ऐसे प्लेटफॉर्म मिला है। हम कुछ सीखेंगे, हम आगे जाएंगे और हम डायरेक्ट अब गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। पहले हमको कोई पूछता नहीं था, अब हम हाई लेवल पे जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा एक मरकजी सेक्टर स्कीम 17 सितंबर 2023 को वजीर आजम ने शुरू की थी, ताकि उन कारीगरों और दस्तकारों को आखिर तक मदद फराहम की जा सके जो अपने हाथों और औजारों से काम करते हैं। इस स्कीम में 18 तिजारतों में मसरूफ कारीगरों और दस्तकारों का अहाता किया गया। कश्मीरी कारीगरों का कहना है कि विश्वकर्मा स्कीम के दायरे में आने से उन्हें काफी फायदा मिला है। कारीगरों ने इस स्कीम की अमल आवरी पर खुशी का इजहार किया। विश्वकर्मा में जब हम आए तो यहाँ के डिपार्टमेंट जो है सर हमारे हैं, उन्होंने हमें अच्छी तरीके से सिखाया। इतनी हमको नॉलेज नहीं थी, एजुकेशन इसके बारे में कुछ नहीं थी। हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ। सर ने भी मेहनत की है यहाँ। हमने कारपेंटर में इतना सीखा कि हमें पावर टूल का कुछ पता नहीं था। इन्होंने हमको पावर टूल के बारे में भी जानकारी दी कि पावर टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। पहले हम ये काम नहीं कर सकते थे। हमने अब इतना हम एजुकेटेड हुए हैं कि हम अब गवर्नमेंट से खुद काम ले सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम का मकसद न सिर्फ मुल्क भर के देही और शहरी इलाकों के कारीगरों की माली मदद करना है, बल्कि मकामी मसनूआत, फनून दस्तकारी के जरिए कदीम रवायत, सकाफत और मतनूह विरसे को जिंदा और खुशहाल रखना भी है। हुकाम का कहना है कि 1 साल कबल ये स्कीम मुतारिफ हुई है और कारीगर अब भी इस स्कीम से ना आशना है। उन्होंने कहा कि 18 तिजारतों को इस स्कीम में शामिल किया गया है, लिहाजा कारीगरों को आगे आना चाहिए और स्कीम से मुस्तफीद होना चाहिए। स्कीम पिछले साल लॉन्च हुई है। लोगों में अभी ज़्यादा पता नहीं है। जो हमने बताया, जो हमने इसमें स्कीम में 18 ट्रेड लिए हमने, तो लोगों को उस चीज़ में अभी गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन मीडिया की वसादत से ये ज़्यादातर लोगों तक पहुंच जाएगा। जो इन 18 ट्रेड्स में लोग आ रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में जुड़ जाए और इससे इस्तेफादा हासिल करें। अभी मान लीजिए, अगर आप देखेंगे कश्मीर की मैं बात, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम पूरे कंट्री में जम्मू कश्मीर जो वो नंबर 1 पे है अभी, जितने हमने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आवर प्लान इज़ टू मोबिलाइज मोर एंड मोर सो दैट इट विल रीच टू मैक्सिमम पीपल। हाथ के हुनर से, औजारों से रवायती तौर पर काम करने वाले लाखों कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना
उम्मीद की एक नई किरण है। इस स्कीम के साथ मुल्क को बैनुल-अक़वामी नुमाइशी मरकज यशु भूमि भी मिल गया है। जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी ज़िला राजौरी में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए फ़ौज ने आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक तिब्बी कैंप मुनक़िद किया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने लोगों की बड़ी तादाद, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उनका तिब्बी मुआयना किया और लोगों में अद्वियात बीमारियों के मुताबिक तकसीम की। लोगों ने इस इक़दाम को सराहा। पेश है इस सिलसिले में हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के खित्ता-ए पीर पंजाल में वाक़ा पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए फौज की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकाद अमल में लाया गया। फौज ने इस मुफ्त तिब्बी कैंप का इनाकाद आउटरीच प्रोग्राम के तहत अमल में लाया। मकामी लोगों ने फौज के इस इक़दाम को सराहा। ये कैंप थाना मंडी के एक सरकारी स्कूल में मुनक्किद किया गया। मैं 30 सेक्टर कमांडर साहब का, 61 RRCO साहब का, ऑल अफसर्स, JCOs और तथा जवानों का बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ की सिविलियन जनता को बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं। हर तरह की प्रॉब्लम जो है उनकी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ इस मेडिकल कैंप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजौरी से लेकर बफलियाज और बफलियाज से लेकर मंगोटा, दरा, बुरहून, ये पूरा इलाका, डन्ना वगैरह सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने डॉक्टरों का बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, जो कि दिल्ली से भी इन्होंने डॉक्टर मंगाए हैं और हर एक बीमारी के डॉक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। मुनक्किदा मुफ्त तिब्बी कैंप में सरहदी और कंडी देहात से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शमूलियत की, जिनका मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टरों ने इलाज व मुआलजा किया और इनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गईं। मकामी बाशिंदों ने फौज के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इस तरह के कैंप वक्तन फवक्तन मुनक्किद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि फौज की जानिब से दूर दराज और पसमानदा इलाकों में इस तरह के मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्किद किए जाने से गरीब लोगों को काफी राहत पहुंची है। आर्मी जो होती है एक ब्रिज होता है। ये ब्रिज जो है ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के दरमियान पुल का रोल अदा करती है और उस रोल में आर्मी ने बखूबी यहाँ वो रोल निभाया है और हर लिहाज से हम लोगों का प्रोटेक्शन करती है। हर लिहाज से कोई भी अगर किसी तरह की मजबूरी आ जाए तो बाकायदा इनकी एम्बुलेंस भी हाजिर होती है और हर जगह ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सिविल आवाम को कहीं कोई नुकसान ना उठाना पड़े, चाहे वो बीमारी के रूप में हो चाहे किसी और रूप में हो। कैंप के मुंतजमीन ने तिब्बी कैंप के इनाकाद के हवाले से बताया कि फौज इस इलाके में मजीद ऐसे कैंप मुनक्किद करेगी क्योंकि ये इलाका इक्तिसादी तौर पर काफी पसमानदा है। यहाँ सेहत आमा के हवाले से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के इक़दामात से अवाम के साथ राबिता भी बढ़ जाता है। मेडिकल कैंप जो यहाँ हो रहा है, जो मिलिट्री कैंप ने हमें बुलाया है, इसका अवसर हमें दिया है। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला और मैं मिलिट्री के जो भी मेरे सहयोगी है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे कैंप की इस एरिया में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे कैंप हफ्ते में, साल में होने चाहिए और इस मेरे कश्मीर की जनता को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, यही मेरी सबसे विनती है। राजौरी के सरहदी देहात से अस्पताल काफी दूर था। यहाँ मामूली तिब्बी मुआयने के लिए भी यहाँ के बाशिंदों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मुस्तकबिल करीब में भी फौज राजौरी में वजारत दिफा के ताउन से ऐसे मजीद तिब्बी कैंप मुनक्किद करेगी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप इस बारे में अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं।
آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ شمارہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر.